Hello everyone, I hope you are doing good and you are studying well for your examinations. As you know, the Institute of Cost Accountants has released a new study material for CMA final paper number 19, that is Cost and Management Audit. Very recently, the Institute has released the new study material. It is edition April 21, which has been released in the month of August 21. इसकी applicability की अगर मैं बात करूँ तो this new study material is applicable for all students giving examinations in December 21 and onwards. Okay, so if you are going to give examination in the upcoming December attempt or in the future attempts, you are required to study from this study material. All right, अब बात करते हैं मैम क्या इसके अंदर बहुत सारे एडिशंस बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. कुछ एडिशंस एंड अपडेट्स आर देयर विच वील बी कवरिंग. Just like we had covered all the chapters, all the topics properly chapter wise in the class, in the similar manner sequentially we'll be covering the updates also. So if you ask me, ma'am, do I need to study this entire study material again, the new one? No, you can only cover the updates that I'm covering in the lecture. All right, now the question comes, ma'am, iske notes kahan milenge? If you have the new study material with you, the new study material that I'm showing on the screen, note it down. This is the April 2021 edition. If you have this study material, you can refer to the topics that I'll be covering from the institute study material itself. If you have the old study material, in that case I will be giving you a supplementary material. In that supplementary material, whatever additions and updates have been made, I have covered all of those updates chapter wise. Chapter wise, when I say chapter wise, I mean the order of the chapter that we had followed in our class. All right, the order of the chapter that we had followed in the class, in the similar order we have covered the updates also in the supplementary. Ma'am, supplementary kahan se milegi? If you are watching this video on YouTube, you will get the link of the supplementary in the description box below. All right, otherwise you can also download it from your class slides. We'll also be updating this supplementary in our Telegram channel. If we haven't updated it yet, you'll find it very soon. Otherwise, you can just go and check out our Telegram channel. This supplementary material is also available there. So, two ways to study. Number one, Institute study material, April 21 edition. Okay. Second is you can refer to our supplementary notes. The supplementary notes are for volume number 2. If you have studied cost audit with us, volume 2 जो था उसका supplementary material आपको मिल जाएगा. अलग से volume 1 का supplementary भी आपको provide किया जाएगा. All right, now let's talk about what type of updates have been made. सो इंस्टीट्यूट ने जनरली क्या किया है इस न्यू स्टडी मटेरियल में, कुछ जगह पे चैप्टर के नाम वगैरह चेंज कर दिए, कहीं कहीं चैप्टर के अंदर नए टॉपिक्स कुछ ऐड कर दिए हैं. सो आवर फोकस विल बी ऑन द कंटेंट दैट हैज़ बीन एडेड. ऑल राइट, सो टुडे वील बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट chapter number 5 of our volume 2, that is basics of cost and management audit. In this chapter a very short topic has been added, which is the advantage of cost audit. अगर मैं ये आपको नहीं भी पढ़ाऊँ और आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कॉस्ट ऑडिट के क्या एडवांटेज है, तो भी आप लिख सकते हो. ठीक है. सो अ वेरी सिंपल टॉपिक, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट हैज़ बीन एडेड. अनदर टॉपिक हैज़ बीन एडेड इन दिस चैप्टर, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर. बट दिस टॉपिक वी हैड ऑलरेडी कवर्ड इन आवर चैप्टर नंबर 7. कॉस्ट ऑडिटर वाला जो चैप्टर था ना, कॉस्ट ऑडिटर प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन दैट चैप्टर FAQs के अंदर में हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया था. ठीक बात है. तो ये हमारे लिए सिर्फ यहाँ पर एक ही टॉपिक जो है ऐड हुआ है, दैट इज एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट. अभी आप देख रहे होगे जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है इसके अंदर में आई हैव हाईलाइटेड सम ऑफ द की वर्ड्स. सो वील बी कवरिंग द एंटायर पोर्शन एंड योर फोकस फॉर द एग्जामिनेशन वुड बी ऑन द की वर्ड्स ओनली. You can just learn the keywords, understand the keywords, and then you can frame the answer accordingly. Let's start. So, why is cost audit important? What are the advantages of cost audit? Initially, in the past, when the cost audit was conducted, it was just a price control kind of a mechanism. Okay, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर में प्राइस एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी करती है. गवर्नमेंट कई सारे सेक्टर्स में प्राइस एडमिनिस्ट्रेशन करती है इन द कोर इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल योर पेट्रोकेमिकल्स. सो इन सर्टन कोर इंडस्ट्रीज, ये दो एग्जाम्पल मैंने दिए. इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्स द prices.
Now to ensure that these price mechanisms, the regulations issued by the government is followed, price कहाँ से आता है? Price is what? Your cost plus profit. So cost जो है वो अगर ऑडिटर वेरीफाई कर देता है तो प्राइस एक तरीके से क्या हो गया? वेरीफाई हो गया, राइट? एम आई राइट और नॉट? यस मैम. सो when the cost statements are audited by a professional, the government was rest assured that okay, these cost statements are audited by a professional, the pricing mechanism is being followed. ये होता था पहले के ज़माने में जब कॉस्ट ऑडिट की शुरुआत हुई थी. इट वॉज जस्ट अ टूल फॉर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म to meet the government requirements for regulating the administered price mechanism. But जैसे जैसे समय बदला तो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसके कई सारे बेनिफिट्स लोगों को रियलाइज़ होने लग गए. कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, व्हेन आई से कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन द कॉस्ट स्टेटमेंट्स, द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, उसकी क्या ज़रूरत है. So whenever the cost information is there with the company, अभी हम company point of view से अगर समझे, organization point of view से, if you have the entire cost statements prepared, you will be able to structure your cost properly. Structuring of the cost, ठीक है, मेरा मटेरियल में इतना खर्चा लगा, एम्प्लॉय कॉस्ट इतना लगा, ओवरहेड्स इतने लगे. अब नेक्स्ट अगर हमें इम्प्रूव करना है, कहीं पे कॉस्ट रिडक्शन करना है, कॉस्ट कंट्रोल करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं. सो स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉस्ट एंड अकॉर्डिंगली द ऑर्गेनाइजेशंस कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद देयर स्टेक होल्डर्स. इफ आई वॉन्ट if I want to do a credit purchase, if I want to say do any communication with the government with regard to my cost statements, अगर वो cost information verified है, in that case it is more reliable and it helps the organization to communicate effectively with its stakeholders when it comes to cost. All right, second point अगर आप देखें तो ये cover हो गया. Second point, it also helps in analyzing the exact organizational performance. देखो, अगर हम फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हम नेट प्रॉफिट, पैट से एक फिनेंशियल पोजीशन कंपनी की जज कर सकते हैं. बट इफ़ यू लुक फ्रॉम द ऑपरेशनल एंगल, ठीक है, सपोज यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर रनिंग अ बिजनेस, इन दैट केस as important as PAT, it is cost and pricing is equally important for you. All right, तो वो operational angle समझने के लिए, you know, to analyze the wastages that are happening, how efficiently resources are being allocated, how efficiently the resources are utilized, उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है? उसके लिए we need the cost information, and if that cost information is verified, सोने पे सुहागा. All right, so रिसोर्स एफिशिएंसी जानने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन पॉलिसीज बनाने के लिए इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, whatever strategies have been implemented in the organization, say I implement a strategy to reduce my employee cost. मेरा आइडल टाइम में बहुत खर्चा जा रहा था, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने कोई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की. नाउ वो स्ट्रैटेजी कितने हद तक वो स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली वर्क कर रही है मेरे लिए, how will I be able to judge that? How will I be able to get information about that? When I again study the cost information. So cost information also helps the organization to see how well these strategies are being implemented. Basically strategy जो है उसके performance की appraisal, strategy के performance की appraisal हो सकती है cost information से. It also helps the organizations in taking some kinds of decisions with regard to customer expectations, with regard to their profitability, with regard to how resource utilization can be improved. See, अगर आपके पास कोई information है तभी improvement के बारे में आप सोच सकते हैं. तो cost information जो हमारे पास रहेगी, it can help in better utilization of the resources. Also product mix, investment decisions, ये सब तो हमने पढ़ा है ना आपने, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इश्यूज़, उसके अंदर में कई सारी केस स्टडीज़ हमने पढ़ी है. प्रोडक्ट मिक्स कैसे डिसाइड हो सकता है, कॉस्टिंग में भी आपने पढ़ा है. सो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जब रहेगी हमारे पास तो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डाइवेस्चर करना है क्या, हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, कई सारी डिसीजंस हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट, फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एक कॉमन डेटा सोर्स है,
ठीक है, पब्लिक सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एक कॉमन डेटा सोर्स से हमें डेटा मिल रहा है रिगार्डिंग द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, तो हम कई सारी स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इन्फॉर्मेशन मिल रही है टायर्स की कॉस्ट को लेके, वैसे ही हमें कार के अलग अलग पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऑलराइट, अलग अलग इंडस्ट्रीज से, सो इट कैन हेल्प अस, और हमें कार की भी कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कार मैन्युफैक्चरिंग जो असेंबलिंग है उसकी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कॉस्ट की। सो यू नो वी कैन रिकंसाइल दैट इन्फॉर्मेशन, द गवर्नमेंट कैन, इट कैन हेल्प द गवर्नमेंट to reconcile all the information that is available. This is just one example, but अगर common data source में सारा data है cost का, तो सारी जो अलग अलग तरह की statements बनी है it can be reconciled. नेक्स्ट, अगर जो भी डेटा सिस्टम्स है, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डेटा बेस है, अगर वो इंटीग्रेट हो जाता है, एक ही जगह सारे मटेरियल का खर्चा, एम्प्लॉय कॉस्ट, आपका ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, मार्केटिंग कॉस्ट, सारा कुछ अगर इंटीग्रेटेड है, अगर सब कुछ इंटीग्रेटेड है, तो डेटा मैनिपुलेशन नहीं होगा. It again helps in reconciling the data. So this is the importance, the benefits of कॉस्ट इन्फॉर्मेशन. क्या मैंने अभी आपको ये बताया कि कॉस्ट ऑडिट के क्या एडवांटेज है? नहीं, अभी तक मैं कॉस्ट ऑडिट पे नहीं आई हूँ. अभी तक वी आर टॉकिंग ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन. हाउ कैन द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन बेनिफिट एन ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट द सोसाइटी और द स्टेक होल्डर्स एट लार्ज. नाउ वी कम टू द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट. कॉस्ट ऑडिट क्यों कराई जाती है? What is the objective of conducting cost audit? Remember हमने ये पढ़ा था, cost audit is done in order to express. cost audit के अंदर, audit report के अंदर auditor क्या express करता है? Regarding the truthness and fairness of what? Of the cost of production, the cost of sales, alright, margin of sales, सबका truthness and fairness, whether they are expressing, presenting a true and fair view or not, इसके ऊपर रिपोर्ट इशू की जाती है. alright, so कॉस्ट ऑडिट के एडवांटेजेस के अंदर क्या आता है? द ऑडिटर कैन हाईलाइट द वीकनेसेस इन द सिस्टम, द वीकनेसेस, सो द व्हेन द वीकनेसेस आर बीइंग हाईलाइटेड बाय द ऑडिटर, उन वीकनेसेस को रिमूव करके कॉस्ट को ड्राइव डाउन किया जा सकता है. सो नंबर वन, इट इज टू आइडेंटिफाई द वीकनेसेस इन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स. सेकेंड, जब वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया, आफ्टर दैट व्हाट, वी कैन इम्प्रूव, वी कैन वर्क ऑन दोज वीकनेसेस एंड वी कैन ड्राइव डाउन द कॉस्ट, drive down the cost by detecting wastages and inefficiencies. Next, it also helps the government. If we talk of from the government point of view, cost audit अगर होती है तो government उन audit reports को use करके अपना tariff and taxation policies formulate करने के लिए help ले सकते हैं. Basically, just I'll give you one example, आप समझ जाओगे. किन products के ऊपर ज़्यादा taxes लगाने हैं, किन सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगानी है, किन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ कम किया जाए, किन के ऊपर ज़्यादा किया जाए. दिस इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टैरिफ एंड टैक्सेशन पॉलिसी, राइट. नाउ इन ऑर्डर टू मेक सच डिसीजंस द गवर्नमेंट नीड्स सम डेटा सोर्सेज. अब अगर किसी एसेंशियल कमोडिटी का कॉस्ट ही बहुत हाई आ रहा है, किसी एसेंशियल कमोडिटी का, मेडिसिन से फॉर एग्जांपल, एसेंशियल कमोडिटी कॉस्ट ही बहुत हाई है, द गवर्नमेंट कैन सी इट फ्रॉम द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, द कॉस्ट स्टेटमेंट्स, ऑलराइट. तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगा? और टैक्स लगाएं, टैरिफ भी बढ़ा दें. अगर कुछ इंपोर्ट हो गया रहा है, टैरिफ बढ़ा दें उसके लिए? नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स कम करना चाहिए, बिकॉज इट इज एन एसेंशियल कमोडिटी. द गवर्नमेंट कैन सी कॉस्ट इज ऑलरेडी वेरी हाई, सो लेस टैरिफ, लेस टैक्सेस. Are you able to understand what I am trying to say? So 3 points, 3 advantages of cost audit. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ सकता है, अदरवाइज MCQ में तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, MCQ टाइप नहीं है, बट स्टिल क्या क्या एडवांटेजेस है कॉस्ट ऑडिट के? नंबर वन, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द वीकनेसेस. वीकनेसेस वेयर? वीकनेसेस इन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स, ऑलराइट. सेकंड, when you identify the weakness, it helps you to drive down, to reduce, to lower down the costs by removing the wastages that have been detected, by removing the weaknesses. And lastly, government को किस तरह से help करता है? It helps the government in formulating the tariff and taxation policies. So यही सिर्फ एक addition था in your chapter number 5, the basics of cost and management audit. I can just show it to you in the institute study material. Just give me a moment. जो एक FAQ मैंने बताया आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐड हुआ है, सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. रिमेंबर,
सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हमने काफ़ी सारे उसके अंदर क्लॉजेस किए थे, याद है आपको? कुछ याद आ रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, एलएलपी को अपॉइंट कर सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट एक्सक्लूडिंग एलएलपी, ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। पॉइंट्स याद आ रहे हैं आपको? रिकॉल कर पा रहे हो? यस, सो दैट इज द टॉपिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, यू कैन सी nature of cost audit we had done, genesis, objectives, utility, advantage. This topic has been introduced new, which we have now covered. This we have covered in chapter number 7 का FAQs के अंदर। क्लास में मैंने आपको इसके बहुत अच्छे से नोट्स भी लिखाए थे, तो वही सेम है, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो वी हैड कवर्ड। Alright, so that is about the update in your chapter number 5, that is basics of cost and management audit. For the next chapter, we'll be covering in a separate video. Thank you.